Welcome students. Today's lecture is based on cleavage. We are going to study about the general characteristics of cleavage. As you very well know, after fertilization, the first step in development is cleavage. Cleavage means repeated mitotic divisions. Now, before going into the characteristics of cleavage, you have to understand कि zygote fertilization से cleavage में कैसे switch करता है. The transition from fertilization to cleavage is caused by the activation of a factor which is known as MPF, mitosis promoting factor. अगर ये mitosis promoting factor activate नहीं होगा तो cleavage नहीं होगा. Cells formed during cleavage are called blastomeres. ब्लास्टोमियर्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो उनको बाकी के सेल्स से डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि इन सेल्स में सेल साइकिल जो होती है उसमें सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं, माइटोसिस एम फेज एंड एस डीएनए सिंथेसिस फेज. बाकी के बॉडी के सेल्स में जब भी स्टूडेंट्स सेल डिवीजन होता है तो सेल साइकिल में इंटरफेज आता है. In that interface, we know G1 and G2 phases are also present. Here we are saying that initially cleavage में जो blastomeres बनते हैं उनमें केवल M and S phase होते हैं and these blastomeres are under the control of maternal genes या maternal factors. What does the word maternal factor mean? Maternal factor means proteins and mRNA which are present before fertilization in the egg cytoplasm. The first exception to this rule is mammals. Mammals में maternal genes का fertilization के बाद कोई roles नहीं होता है students. यहाँ पे zygotic genes become active very early और बाकी के animals में पहले maternal genes active होते हैं और zygotic genes जो होते हैं वो mid blastula या late cleavage में जाके active होते हैं. The next most important point in cleavage is that students cleavage के दौरान कोई cytoplasmic volume increase नहीं होता है, सिर्फ cytoplasm छोटे छोटे blastomeres में divide करता है, उसका volume नहीं बढ़ेगा. मतलब zygote का जितना volume था blastula का भी उतना ही रहेगा. Next point. Cleavage is the result of 2 coordinated processes. आपको पता है जब भी सेल डिवीजन होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों होते हैं. The key difference between karyokinesis and cytokinesis is that karyokinesis means nuclear division and cytokinesis means cytoplasm का division. Karyokinesis is brought about by mitotic spindles, जबकि cytokinesis होता है contractile rings से. जो प्रोटीन इन्वॉल्व हैं कैरियोकाइनेसिस में वो ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और साइटोकाइनेसिस में जो प्रोटीन इन्वॉल्व है वो है एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट्स. हमें पता है सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, इसलिए कैरियोकाइनेसिस सेंट्रल साइटोप्लाज्म में होगा सेल के एंड साइटोकाइनेसिस जो होगा वो पेरिफेरल या कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में होगा. तो स्टूडेंट्स हमें ये याद रखना है कि क्लीवेज के दौरान रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं. ये जो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं इनमें सिर्फ M एंड S फेज ही होता है. S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है. एंड सेकेंड बात, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के बीच में जो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होता है उसके लिए MPF का सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Now the next point is that cleavage में most of the cells do not grow. You have to remember this. Growth does not occur. Only the volume of oocyte is being cleaved. Again the exception is mammals. ये mammals का second exception है जो आपको remember करना है. The first exception was that mammals में maternal genes का कोई role नहीं होता. The second exception is that mammals में blastomeres की growth भी होती है. इसको अगर हम समझें तो you have to remember that students in rest of the animals, I am talking about vertebrates क्योंकि आपका पेपर vertebrata का है. In rest of the vertebrates starting from fishes to mammals,
ओनली मैमल्स आर एक्सेप्शन, क्योंकि बाकी सारे एनिमल्स में स्टूडेंट्स रेट ऑफ क्लीवेज जो होता है बहुत स्लो होता, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उसमें G1 एंड G2 फेज नहीं है, तो रेट ऑफ क्लीवेज बहुत फास्ट है। एंड क्लीवेज के जो डिविजन्स हैं वो सिंक्रोनस होते हैं। सिंक्रोनस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जब एक ब्लास्टोमियर से दो ब्लास्टोमियर बने तो वो दोनों फिर से डिवाइड करके 4 ब्लास्टोमियर्स बनाएंगे, यानी आपको हमेशा इवन नंबर्स मिलेंगे, 2, 4, 8, 16, 32, 64। जबकि मैमल्स में रेट ऑफ क्लीवेज बहुत बहुत स्लो होती है। पहला क्लीवेज डिवीजन और दूसरे क्लीवेज डिवीजन के बीच में घंटों का फर्क हो सकता है, देयर मे बी डिफरेंस ऑफ आवर्स। एंड सेकेंडली, मैमल्स में क्लीवेज डिविजन्स आर नॉट सिंक्रोनस, दे आर एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब होता है दो ब्लास्टोमियर के बाद एक ब्लास्टोमियर डिवाइड करेगा, एक नहीं करेगा, तो आपके पास ऑड नंबर भी आ गया 3। जरूरी नहीं है दोनों एक साथ डिवाइड करके 4 ब्लास्टोमियर्स ही बनाएं, मैमल में 3 ब्लास्टोमियर्स भी हो सकते हैं। तो ये सेकंड एक्सेप्शन मैमल्स का मैंने आपको बताया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग क्लीवेज अब हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला हम उसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज सिंगल लेयर्ड, blastomeres are arranged in a single layer and the cavity within the blastula is called blastocele. If there is no blastocele, then it is called stereoblastula. Again mammals are an exception, क्योंकि mammals की blastula को हम blastocyst कहते हैं। Now what does the word blastocyst means students? ब्लास्टोसिस्ट का मतलब है कि क्योंकि बाकी के एनिमल्स में ब्लास्टुला जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, मैमल्स में रिमेंबर स्टूडेंट्स ब्लास्टुला जो है वो डबल लेयर्ड है। एम आई वेरी क्लियर? मैमल्स में ब्लास्टुला इज डबल लेयर्ड, इसलिए हम उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जिसमें से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कोरियन बनती है, और अंदर की जो लेयर होती है उसको हम ICM इनर सेल मास कहते हैं, जिसमें से पूरा एम्ब्रियो बनता है। तो ये अगेन मैमल्स का एक और एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, क्योंकि क्लीवेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो गैस्ट्रुलेशन होता है, तो जहां से गैस्ट्रुलेशन शुरू होता है ब्लास्टुला में, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ब्लास्टोमियर में M और S फेज होता है उसका स्विच ऑन और स्विच ऑफ के लिए हमारे पास एक फैक्टर है साइक्लिन B। साइक्लिन B का अगर सिंथेसिस होता है तो MPF बनता है, MPF बनेगा तो M फेज यानी माइटोसिस होगा। अगर साइक्लिन B का डिग्रेडेशन होता है तो MPF नहीं बनेगा, तो माइटोसिस नहीं होगा और सेल वापस से S फेज में चला जाएगा। द G1 एंड G2 फेजेस जो कंबाइन होके G फेजेस कहलाते हैं वो अर्ली क्लीवेज में एब्सेंट होते हैं, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन में ऐड होते हैं। Now, as you very well know कि rate of cleavage depends on the amount of yolk. yolk के ऊपर cleavage की rate dependent होती है। cleavage हमें पता है 2 types का होता है। अगर cleavage complete हो रहा है तो उसको हम holoblastic cleavage कहते हैं। अगर complete cleavage हो रहा है तो उसको हम holoblastic कहते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज उन एग्स में होता है जिनमें योक की मात्रा बहुत कम हो, ऐसे एग्स को हम आइसोलेसिथल कहते हैं, या जिन एग्स में मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक हो ऐसे एग्स को हम मीजोलेसिथल एग्स कहते हैं। यू वेरी वेल नो स्टूडेंट्स, द एग्जांपल ऑफ आइसोलेसिथल एग्स is mammals and the example of mesolecythal eggs is amphibians. Because holoblastic cleavage means complete cleavage, meroblastic cleavage means incomplete cleavage. इनकम्प्लीट क्लीवेज मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि अमाउंट ऑफ योग बहुत ज्यादा होता है। These eggs contain more amount of yolks and such eggs are known as telolecithal eggs. Now, if the yolk is concentrated only in the center,
the eggs are known as centrolecithal eggs. और जहाँ पे एग centrolecithal होगा, जो कि इंसेक्ट्स में होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में ड्रोसोफिला है, दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग दिस एग्जांपल हियर. ड्रोसोफिला जो है उसमें क्योंकि centrolecithal एग है तो क्लीवेज सुपरफिशियल होगा. सेंटर में क्योंकि योक आ गया तो क्लीवेज साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म क्योंकि पेरिफेरी में है तो वो वहां पे हम उसे कहेंगे सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज. फिशेस, स्टूडेंट्स, फिशेस एंड बर्ड्स, क्योंकि उनमें मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, उसको हम कहते हैं डिस्कॉइडल. डिस्कॉइडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग जो है वो टीलोलेसिथल है, पूरे एग में योक है, तो क्लीवेज जो होगा एक डिस्क के रूप में एनिमल पोल पे होगा. तो ऐसे क्लीवेज को हम कहेंगे डिस्कॉइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज. नाउ अगेन आई हैव टू एक्सप्लेन यू अबाउट मैमल स्टूडेंट्स, क्योंकि मैमल्स का मेन है पॉइंट. मैमल्स में हमने लिखा है होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज. व्हाट डज दिस वर्ड मीन? होलोब्लास्टिक मीन्स complete cleavage. Okay. Rotational. What does the word rotational mean, student? रोटेशनल का मतलब होता है कि जो ब्लास्टोमियर्स बने इनमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन आ रहा है एक दूसरे के लिए. द ब्लास्टोमियर्स हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन इन अ प्लेन. ये अगेन मैमल्स का यूनिक फीचर है. You have to remember all the unique features of mammals that I have quoted today. The first unique feature of mammals was that कि उसमें maternal genes का कोई रोल नहीं होता. Second feature was that mammals में cleavage की rate slow and asynchronous होती है. Third feature हमारा mammals का था कि उसमें growth भी होती है cleavage के दौरान. फोर्थ फीचर हमारा ये था मैमल्स का कि उसमें ब्लास्ट्यूला को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं क्योंकि वो डबल लेयर्ड होती है. और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको रिमेंबर करना है कि मैमल्स में होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज होती है. इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट.